Hello students, welcome in the physics class. Today we will solve the remaining questions of NCERT exercise of chapter 7. So up to question number 7.12 we have discussed. Today we will start with the question number 7.13 of the NCERT exercise. इसमें क्या बोला गया कि आपके पास अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन एट द सेंटर ऑफ अ टर्न टेबल विद हिज टू आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड. द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रेवोल्यूशन पर मिनट. स्टार्टिंग में जो उसकी आपके पास एंगुलर स्पीड है वो है कितनी 40 रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखिए आपके पास रेवोल्यूशन पर मिनट. This one, how much is the angular speed of the child if he folds his hands back and thereby reduce his moment of inertia to 2/5 times of initial value. मतलब जो हमारे पास सेकंड वन आपके पास आ रहा है मोमेंट ऑफ inertia that is 2/5 of I1. We have to find out this omega 2 that we have to find out. One more thing, B part इसमें पूछा गया show that the child's new kinetic energy of rotation is more than the initial kinetic energy of rotation. How do you account for this increase in the kinetic energy? ये बात में देखते हैं हम लोग. A part हम लोग पहले करने जा रहे हैं. हमें पता है according to the principle of conservation of angular momentum, this I2 omega 2 that is equal to I1 omega 1. ये निकालना है हम लोगों ने. सो ओमेगा 2 दैट इज इक्वल टू I1 ओवर I2 इनटू ओमेगा 1. सो दिस ओमेगा 2 दैट इज इक्वल टू I1 तो I के बराबर है, I1 के बराबर है. I2 की वैल्यू रख दो दैट इज 2/5 ऑफ I1 एंड ओमेगा 1 इज 40 रेवोल्यूशन पर. I1 से I1 कैंसिल आउट. सो ओमेगा 2 दैट इज इक्वल टू 5/2 इनटू 40. So this comes out to be omega 2. यहाँ से ये 20 हो गया, 25 सा 100 रेवोल्यूशन पर मिनट. ये हमारे पास क्या है? This one is the new frequency. दूसरी बात हम लोगों से इसमें क्या पूछी गई है that we have to prove that the new kinetic energy of rotation is greater than that of initial kinetic energy of rotation. तो अगर हम लोग बात करें initial kinetic energy of rotation E1 that is half I1 omega 1 square and the new or final kinetic energy of rotation. इसकी बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है that is E2 that is equal to half I2 omega 2 square. हमें प्रूव करना है कि ये इससे ज्यादा है डिवाइडिंग दिस E1 by E2, so we get E2 over E1. हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास. तो मेरे पास आ गया I2 over I1 into omega 2 square upon omega 1 square. Substituting the values, this comes out to be I2 that is a 2/5 of I1. 2/5 of I1 यही किया था हमने I2 2/5 of I1 upon I1 omega 2 100 का स्क्वायर upon omega 1 that is 40 का स्क्वायर. So this comes out to be 2 upon 5 into this comes out to be 100 into 100 upon 40 into 40. यहां से हमारे पास ये दो जीरो कैंसिल आउट. दिस इज 4 1s are 4. दिस इज 25. दिस कम्स आउट टू बी 5 5s are 25 and this is 2 2s are 4. So E2 over E1 that is equal to 5 upon 2 that is equal to 2.5. So E2 that is 2.5 times of
E1 मीन्स हमारे पास क्या है, दैट इज E2 दैट इज ग्रेटर देन E1। यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। अब इसमें एक चीज और बोली गई, दैट हाउ विल यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन एनर्जी। व्हाट हैपेंस, फर्स्ट अ चाइल्ड दैट वाज स्टैंडिंग विद द outstretched arms, as he closed the arms, that is जो internal energy, or we can say that the muscular energy is used, and that energy, internal energy or the muscular energy of the child, that gets converted into the kinetic energy. So this account for the increase in the kinetic energy. Next question हम लोग देखते हैं। Question number 7.14. A rope of negligible mass is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg. Mass दिया गया है hollow cylinder का, that is 3 kg, and the radius 40 centimeter. Radius is given 40 centimeter, converted into meters, so that is 0.4 meter के बराबर हमारे पास radius है। What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, that is 30 Newton। इस तरीके से पुल किया गया इसको। And what is the linear acceleration of the rope? एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन दोनों निकालने हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास टॉर्क। देखो रेडियस हमारे पास दे रखी है, इस सिलेंडर को ऐसे घुमाया गया, ये सिलेंडर है अगर हमारे पास इस तरीके से, तो यहाँ से वो घुमाएंगे तो ऐसे ही घुमाएंगे हम लोग सीधा डायरेक्टली इसके टेंजेंशियली आएगा, तो आपके पास फोर्स लग गया, दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। So first of all, there is a moment of inertia of the hollow cylinder, I, that is equal to mr square, m आपके पास है 3, r 0.4 square. So this moment of inertia, that is equal to 3 into 0.16. So that comes out to be 0.48 kilogram meter square. This is the moment of inertia हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वन टॉर्क निकालें, तो हमें पता है टॉ दैट इज इक्वल टू आर एफ, आर इज 0.4, एफ इज 30, सो दैट कम्स आउट टू बी 12 न्यूटन मीटर। सो नाउ वी नो दैट दिस टॉ दैट इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, सो अल्फा दैट इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क हमारे पास आ गया 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.48, दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 48 इनटू 100। ये डेसिमल पॉइंट पहले यहाँ दे दिया, सो दिस 4 और ये आ गया आपके पास 25। अल्फा दैट इज इक्वल टू 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस वन इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें अगर हम लोग, तो हमें पता है दैट ए दैट इज इक्वल टू आर इनटू अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन। आर है हमारे पास 0.4, सो दिस ए दैट इज इक्वल टू 0.4 इनटू 25, सो दिस ए दैट कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 7.14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बात करेंगे हम लोग किसकी, दैट इज 7.15 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7.15। सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारे पास। टू मेंटेन अ रोटर ऑफ एट a uniform angular speed of 200 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड दे दी हमारे पास कितनी, 200 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर स्पीड। किसी रोटर को किया गया, रोटेट किया गया। एन इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन मीटर। टॉर्क का हमारे पास आ गया 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन। पावर के लिए हम लोगों ने रिलेशन किया था इस फ्रिक्शनल मोशन में, दैट P दैट इज इक्वल टू टॉ ओमेगा। सो हियर
दिस p दैट इज इक्वल टू tau आपके पास है 180 into this omega that is 200. So this power that comes out to be 36,000 watt, और हम लोग बोल सकते हैं इसको that is 36 kilowatt. So this power is required by the engine to rotate the rotor with the angular velocity of 200 radian per second when torque applied that is equal to 180 Newton meter. Next one question is that is the question number 16. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7.16. 7.16 इसमें क्या बोला गया? फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r a circular hole of radius r by 2 is cut out. The center of the hole is at r by 2 from the center of the original disk. Locate the center of gravity of the resulting flat body. Center of gravity that will lie at the center of mass. हमारे पास मान लो क्या किया गया है, ये डिस्क है, सर्कुलर डिस्क. This one is circular disk. मान लो इसके जो आपके पास क्या है, सेंटर है दैट लाइज एट द ओरिजिन ऑफ द एक्स एक्सिस. ये एक्स डैश में मान रेडियस है इसकी आर के बराबर. दिस वन इज रेडियस, ये हमारे पास रेडियस. अब यहां से क्या किया गया कि एक होल जो है वो कट कर लिया गया, कितना, यहां से. ये हमारे पास क्या कर दिया गया, दिस होल दैट इज कट आउट. ये कट वाला, और इसका सेंटर जो था, जो कट वाला होल था, इसका सेंटर था कितने डिस्टेंस के ऊपर, r/2 के ऊपर, इतने रेडियस इसकी. ये कट किया. हमने क्या निकाला, वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन जो लेफ्ट है हमारे पास. इतना काट दिया हम लोगों ने, बाकी जो बचा उसके हम लोगों ने क्या निकालना है, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. कहां जैसे लाई करता है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. तो मान लो हमारे पास क्या है, हमारा लेट m be the mass of the disk. So area of disk that is equal to pi r square. टोटल का ये माने ये एरिया. मैं निकालूं यहां पर दैट द मास ऑफ यूनिट एरिया ऑफ डिस्क, दैट इज मास पर यूनिट एरिया. ये है मास ऑफ अ यूनिट एरिया. नाउ द एरिया रिमूव्ड, जो एरिया हम लोगों ने रिमूव किया दैट इज इक्वल टू पाई r/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अगर बात करें हम लोग, ये मान लो एरिया आपके पास a के बराबर था, तो मैं चलो इसको रहने दो ऐसे. दैट इज इक्वल टू पाई r²/4. सो द मास रिमूव्ड, मास ऑफ डिस्क रिमूव्ड, जिसको रिमूव किया मैंने कर दिया इसको m डैश, दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया ये है हमारे पास, इनटू दिस वन एरिया. इतने एरिया का रिमूव किया गया, तो मैंने लिख दिया इसको पाई r² अपॉन 4 के बराबर. सो दिस m डैश दैट इज इक्वल टू m/4. इतना मास जो क्या कर दिया हम लोगों ने, यहां से रिमूव कर दिया m/4 के बराबर. नाउ the position of new center of mass. New center of mass, जो सेंटर ऑफ मास आएगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा. ठीक है, वही क्या रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. बिकॉज इन केस ऑफ द होमोजेनियस बॉडी
of regular shape, the center of gravity that coincide with the center of mass of the body. So here this x हम करते थे कि इसके अबाउट करेंगे. देखो हमने लिखा था दैट इज अ x कोऑर्डिनेट दैट इज अ m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2 that are the coordinates of the center of mass. अब यहाँ पर अगर मैं इसका निकालूं तो टोटल पहले पूरी डिस्क करूंगा फिर इसकी बात करूंगा मैं. तो पहले हमारे पास क्या था दैट इज अ m1 m और विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन इसका जो पोजीशन है दैट इज 0 क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसका 1 है. फिर प्लस करते थे लेकिन यहाँ पर ये ऐड नहीं किया है, मास को क्या किया है रिमूव किया है. तो हम लोग यहाँ पर लेंगे माइनस दिस m डैश जो रिमूव किया हम लोगों ने इनटू r/2 दिस m2 x2 कितना हो गया r/2 अपॉन m1 प्लस m2 करते थे तो m1 m आ गया लेकिन ये रिमूव्ड है तो इसलिए मैंने लिख दिया इसको m डैश. सो दिस पोजीशन x दैट इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस बच जाएगा m डैश की वैल्यू रख दी मैंने m/4 इनटू r/2 डिवाइडेड बाय ये माइनस आपके पास यहाँ साइन डिवाइडेड बाय m minus m/4. So this x that comes out to be minus mr divided by 8 divided by ये आ जाएगा आपके पास कितना दैट इज 3/4 m के बराबर. m से m कैंसिल आउट सो x that comes out to be minus 4/3 into r/8. So this x that comes out to be 4 to the 8 तो हमारे पास आ गया minus r/6. This is the position of new center of mass or new center of gravity. This negative sign indicates that this center of mass or center of gravity that lie towards the left of the origin, left of the center. कितने डिस्टेंस के ऊपर at a distance of r/6 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरीके से करना है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है उसकी बात करते हैं हम लोग. 7.17 7.17 that is a meter stick is balanced on the knife edge at the center at its center. ये हमारे पास कोई नाइफ एज है और सॉरी कोई मीटर है. मीटर स्केल मतलब आपके पास ये आ गया मीटर स्केल. दिस वन इज द मीटर स्केल. ठीक है. इसमें हमारे पास जो रीडिंग है रीडिंग हमारे पास आती है यहाँ पर कहाँ से 0 से लेकर के ये 100 तक 100 सेंटीमीटर. ये सेंटर के ऊपर क्या है बैलेंस हो रही है मतलब ये आपके पास 50 आ गया. दिस पॉइंट इज सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोगों ने ले लिया. तो यहाँ पर टोटल इसका वेट एक्ट करेगा. मैंने इसका वेट मान लिया mg के बराबर. ये आ गया हमारे पास 50. रीडिंग यहाँ पर कितने आ गए 50 सेंटीमीटर. अब क्या किया गया इसमें कि दैट when two coins each of 5 gram are put one on the top of the other at 12 centimeter mark. ये हमारे पास आ गया मार्क कितना 12 सेंटीमीटर. मैंने ये मान लिया a. यहाँ पर कितना है 12 सेंटीमीटर मार्क. यहाँ पर दो कॉइन रख दिए आपके पास कितने कितने 5 और 5 ग्राम के. तो कुल मिलाकर हो गया 10 ग्राम. तो 10 ग्राम को मैंने ग्राम को रहने दिया. इसका वेट आ गया 10g नीचे की तरफ. ठीक है. जब यहां पर रख दिया तो दिस मीटर स्केल दैट इज बैलेंस्ड द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर. मतलब यहां पर आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहां पर पहुंच गया आपके पास. एंड दिस वन इज द मार्क 45 सेंटीमीटर. यहां पर बैलेंस. फाइंड द मास ऑफ द स्टिक.
हमने क्या करना है, इसका मास फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। मैं ध्यान दें, अगर हम लोग इसके अबाउट हम लोगों ने क्या करना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा करके करना है। मान लो हमारे पास दैट m with a mass of this take mass of 2 coins, that is 10 gram. So weight of the 2 coins, that is 10 g. मैंने ग्राम नहीं, ये जी आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये डिस्टेंस देखिए, अगर हम लोग यहाँ से, ये 12 सेंटीमीटर का मार्क है, ये 45 सेंटीमीटर का मार्क है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ तक आ गई कितने, 33 सेंटीमीटर। ये 45 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 33। और यहाँ से देखिए अगर हम लोग ये वाले डिस्टेंस में, ये बच गए 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने टॉर्क निकाले इसके अलावा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा ऐसे, और ये करेगा इस। सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो मोमेंट ऑफ फोर्सेस है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो पहले इसका देख लेते हैं हम लोग, दैट इज अ 10g इंटू डिस्टेंस आपके पास 33 माइनस, क्योंकि इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्लस लेना, माइनस लेना है हम लोगों ने, दैट इज mg इंटू 5 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दैट इज 33 इंटू 10g दैट इज इक्वल टू 5 mg। मास हम लोगों ने ये निकालना है, तो यहां से देखिए अगर मास दैट इज इक्वल टू 33 इंटू 10g अपॉन 5g, 5 ये कैंसल आउट हो गया, ये 5 2 जा 10, सो दिस m दैट इज इक्वल टू 66। अब ये m मास किसमें माना है हम लोगों ने, ग्राम में माना है, तो इसका मास भी इसमें आ गया ग्राम में। सो दिस इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक। इस मीटर स्टिक का मास कितना आ गया पास, दैट इज 66 ग्राम के बराबर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7.18। वैसे कर रखा है हम लोगों ने, इस तरीके का कंसेप्ट जो है वो किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं थोड़ा सा इसको। आर्टिकल निकाली थी हम लोगों ने, जो काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, रोलिंग डाउन कर रही थी पूरी बॉडी, उस केस में हम लोग निकाल कर चले थे 7.18। A solid sphere rolls down two different inclined planes of the same heights but different angles of inclination. Will it reach the bottom with the same speed in each case? ध्यान दें, हमारे पास दो इंक्लाइंड प्लेन आ गए हमारे पास, हाइट दोनों में बराबर है, एक में एंगल ज्यादा है और एक में एंगल कम है। हाइट जो है दोनों की बराबर है, तो एक में एंगल, ये हाइट दोनों सेम है, ये भी h के बराबर है, ये भी h के बराबर है। मैं इसी से एक्सप्लेन करता हूँ, ये थीटा ये कम है और ये सॉरी ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है हमारे पास एंगल। इसके थ्रू क्या हुआ, कोई सॉलिड स्फीयर जो है दैट रोल्स डाउन, ऐसे आएगा नीचे, इसमें से भी हुआ आपके पास, एक ही बात है, ये यहाँ से ऐसे इस साइड को रोल्स डाउन नीचे आ रहा है हमारे पास। सॉलिड स्फीयर दे रखा है, इसमें पूछा गया है दैट विल द स्फीयर रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड इन ईच केस। तो सॉलिड स्फीयर की बात करें, तो हमने बात की है कि यहाँ पर स्पीड अक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हेन रीचेस एट द बॉटम हमने निकाली थी, दैट इज इक्वल टू √2gh v
दैट इज इक्वल टू रूट 2gh अपॉन 1 प्लस I अपॉन mr²। अब ये हमारे पास क्या है, दैट दिस वन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द दिस डिस्टेंस और एंगल। स्पीड जो है, द स्पीड अक्वायर्ड एट द बॉटम दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एंगल। एंगल से भी क्या है, इंडिपेंडेंट है आपके पास, और इस डिस्टेंस से भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इट ओनली डिपेंड ऑन द हाइट एंड मोमेंट ऑफ अ इनर्शिया। सो the both the sphere these will reach, the sphere will reach with the same speed on the both the planes when it reaches at the bottom। तो यहाँ पर हम लोग निकाल कर चल रहे हैं। अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें तो I दैट इज इक्वल टू 2/5 mr² के बराबर आता है। सो दिस V दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा, 2gh अपॉन 1 प्लस यहाँ से mr² से mr² कैंसिल आउट हो जाएगा 2/5 mr² और mr² कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। ये कर दिया मैंने, mr² ये mr² ये कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग, ये आपके पास आ गया दैट इज 2gh अपॉन दिस विल बी 7/5 अंडर द रूट, और दैट इज इक्वल टू 10/7gh अंडर द रूट ऑन बोथ द केसेस। So it means that on both the plane the sphere that will reach with the same speed at the bottom। पहली चीज हम लोगों ने यहाँ से निकाला। दूसरा हमारे पास क्या बोला गया कि अगर ये पहला हो गया, सेम स्पीड के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, ये लिख लेना आप लोगों ने। सेकंड वन पूछा गया है कि दैट विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन वन प्लेन देन अदर। क्या किसी एक के ऊपर भी ज्यादा टाइम लेगा देन द अदर। तो हम लोगों ने एक एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन निकाला था। देखो हमने किया था, कोई बॉडी रोल डाउन कर रही है थ्रू द इंक्लाइंड प्लेन, तो हमने लिखा ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस ia अपॉन r²। ये लिखा था हम लोगों ने। अब यहाँ से अगर हम लोग किसकी वैल्यू निकालें, यहाँ पर वही एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने अगर हम लोग, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, दैट इज दिस वन ma प्लस ia अपॉन r² दैट इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा। ये फार्मूला ध्यान में रखना है आप लोगों ने। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि ma बाहर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर m नहीं है, a तो है ही है, i वैसे बच गया आपके पास, तो m नहीं था तो मैंने लिख दिया mr² दैट इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा। सो m से m कैंसिल आउट, a दैट इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr²। अब एक्सेलरेशन अगर निकालें हम लोग, एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, उसके बाद हम लोग टाइम निकाल लेंगे यहाँ से। सो एक्सेलरेशन अगर i की वैल्यू रखनी है, i दैट इज इक्वल टू 2/5 mr²। सो दिस एक्सेलरेशन a दैट इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस दैट इज इक्वल टू 2/5। ये कितना आ जाएगा, दैट इज 7/5। सो a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 7/5। So this a that is equal to 5/7 g sin of theta। It means that this acceleration that is less than that of acceleration due to gravity। Acceleration depend करके किसके ऊपर, इसके ऊपर, एंगल के ऊपर। अब दूसरी बात हमारे पास क्या है कि दैट ये डिस्टेंस भी तो वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब यहाँ से डिस्टेंस निकालें तो हमारे पास क्या है, फ्रॉम, अगर मान लो ये डिस्टेंस s के बराबर मान लीजिए, जनरल दोनों की जो s के बराबर, ठीक है। s1 s2 बाद में करेंगे हम लोग, एंगल भी बाद में देखेंगे हम लोग। सो दिस डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ h अपॉन s दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो फ्रॉम हियर s दैट इज इक्वल टू h अपॉन साइन ऑफ थीटा। ये दो चीजें हैं। अब ये स्टार्ट हुआ रेस्ट से यहाँ पर, तो मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ मोशन की, दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। हमने टाइम निकालना है कि दोनों कितनी सेम लगेगा या अलग अलग टाइम लगेगा। सो s कितना था आपके पास, दैट इज h अपॉन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये 0 है प्लस हाफ
एक्सेलरेशन है 5/7 g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। इसको मैं इस साइड क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आ गया यहां से टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 14h 14/5। यहां से अगर देखो मैं तो ये नीचे आ जाएगा g sin h अपॉन g sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हमारे पास क्या है, ये 14/5 कांस्टेंट, हाइट दोनों की सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, तो डिपेंड करके इसके ऊपर दैट टी स्क्वायर दैट वेरीज इनवर्सली एज साइन स्क्वायर थीटा, सो टी दैट वेरीज इनवर्सली एज साइन ऑफ थीटा। जिसके लिए एंगल कम है उसके लिए टाइम ज्यादा लगा, और जिसके लिए एंगल क्या है ज्यादा है उसके लिए टाइम कम लगा। देयरफॉर the sphere that will not reach at the bottom with same time on both the planes, तो किसके ऊपर ज्यादा लगेगा, for small angle of inclination it take longer time to reach the bottom, जिसके लिए एंगल कम होगा उसमें क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। जिस प्लेन के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम है उसके लिए ज्यादा टाइम, और जिसका ज्यादा है उसमें कम टाइम। यहाँ पर जल्दी पहुंचेगा इस प्लेन में, और इस प्लेन में क्या करेगा, ये ज्यादा टाइम लगाएगा। तो ये पहले का आंसर था। सेकंड पार्ट का नो द बोथ द स्फीयर दिस विल नॉट सॉरी द स्फीयर दैट विल नॉट रीच विद द सेम टाइम एट द बॉटम ऑन बोथ द प्लेन्स, और किसके ऊपर ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये हम लोगों ने यहाँ से देखिए एक्सप्लेनेशन किसकी सीखी है, एक्सप्लेनेशन यहाँ से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपके पास, जिससे 7.18 की बात कर ली हम लोगों ने। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7.19। A hoop of radius 2 meter weighs 100 किलोग्राम। hoop आता है रिंग की फॉर्म में आपके पास। रेडियस की बात करें हम लोग, r दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। ये हमारा स्मॉल मान लेता हूं मैं इसकी रेडियस, r स्मॉल, r दैट इज इक्वल टू 2 मीटर, एंड इट वेज 100 किलोग्राम। मास इसका आ गया 100 किलोग्राम। It rolls along a horizontal floor so that its center of mass has a speed of 20 centimeter per second. How much work has to be done to stop it? जो इसकी स्पीड है, लीनियर स्पीड दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस वन मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देता हूं, तो हमारे पास ये कितना आएगा, दैट इज अ v दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ गया। अब हमारे पास कितना वर्क डन करेगा, क्योंकि रोल कर रहा है तो इसमें एनर्जी आपके पास क्या है, दैट इज अ रोटेशनल एनर्जी एज वेल एज अ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाटएवर इज द एनर्जी दैट मच वर्क दैट हैज टू बी डन टू स्टॉप इट। सो काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुक, रोलिंग हुक, दैट इज mv square plus I omega square, as I that is equal to what, हुक की बात करें तो आपके पास रिंग है मीन्स mr स्क्वायर आएगा, लेकिन पहले हम लोग ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं v अपॉन r। ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। तो हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुक दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। I की वैल्यू रख दो बेटा आप लोग, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज mr स्क्वायर के बराबर हो गया हमारे पास। सो दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुक दैट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। So that is half
mv square plus half mv square. So this comes out to be mv square. Whatever is the kinetic energy, that is the work done. So the work done, required work done, that is equal to the kinetic energy of a move. That work done, that is equal to m, mass कितना है आपके पास 100, means that is equal to mv square, that is 100 into 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर. So that comes out to be 100 into 0.04. So that comes out to be 4 joule. This much work that has to be done to stop the heat. ठीक है. नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.20, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग. यहां पर क्या बोला गया आपके पास कि दैट the oxygen molecule has a mass of 5.3 10 raised power minus 26 kilogram. 5.3 10 raised power minus 26 kilogram. This is the mass of the oxygen molecule. And moment of inertia 1.94 into 10 raised power minus 46 kilogram. Yeah, about an axis through its center perpendicular to the lines joining the two atoms. Suppose the mean speed of such a molecule in a gas is 500 meter per second. Mean speed कितनी है? That is 500 meter per second. हमारे पास इस molecule की speed है. And that its kinetic energy of rotation is 2/3 the kinetic energy of translation. Kinetic energy of rotation is 2/3 the kinetic energy of translation. Kinetic energy of rotation कहती है half I omega square, that is equal to 2/3 of half mv square. Means हम लोग लिख सकते हैं I omega square, that is equal to 2/3 of mv square. Yes. हमने क्या फाइंड आउट करना है? दैट्स फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस ओमेगा. सो ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ mv square upon I. So this omega that is equal to 2/3 of m upon I under the root into b. ये सारी वैल्यू अगर हम लोग रख दें तो हमारे पास ओमेगा क्या आ गया? दैट इज 2/3 ऑफ मास कितना है बेटा आपके पास? 5.3 into 10 raised power minus 26 upon मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 1.94 into 10 raised power minus 46 under the root and this one is 500. ठीक है. इस सारे को अगर हम लोग सॉल्व करें तो मेरे पास यहाँ पर रहता है this one that is 1.82 under the root into 5 into 10 raised power 12. ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये बच गया मेरे पास. तो इसको भी अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाता है ये 6.75 into 10 raised power 12. This omega 6.75 into 10 raised power 12 रेडियन पर सेकेंड. ये बेटा आपको सॉल्व कर लेना है इसको. ठीक है. और इसका स्क्वायर रूट निकालो, आपके पास ये बन जाएगा ओमेगा दैट इज इक्वल टू 6.75 into 10 raised power 12 रेडियन पर सेकेंड के बराबर. अब बात करते हैं हम लोग इसकी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग. 7.21 क्वेश्चन नंबर last question of the chapter this exercise.
7.21। इसमें क्या बोला गया दैट अ सॉलिड सिलेंडर रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। ये हमारे पास दे दिया, दिस इज अ प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, एंड दिस एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोई सिलेंडर जो है वो इसके ऊपर रोल अप कर गया इस डायरेक्शन में, इन दिस सेंस, बॉटम से चला हमारे पास। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है दैट एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर हैज अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, इसकी बी आपके पास दे रखी है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। थीटा हमारे पास आ गया कितना, 30 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट, ए पार्ट हमसे पूछा गया दैट हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द प्लेन, मतलब ये कहाँ तक जाता है। मान लो इसने हाइट अटेन कर ली h के बराबर, ये यहां से पहुंच गए यहां तक। ठीक है, लेट h बी द हाइट अटेन्ड बाय द सिलेंडर, और ये डिस्टेंस यहां से मान ली मैंने s के बराबर, जो इतनी यहां तक आ गई। ये मैंने मान लिया दिस इज a, दिस वन इज b एंड दिस वन इज अ c, यहां तक। तो जो टोटल एनर्जी थी इसकी आपके पास कौन सी, दैट इज ऑफ रोलिंग मोशन, वो सारी की सारी इसमें कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर जाकर के पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। तो हम लोग फार्मूला निकाल चलेंगे यहाँ पर दैट mgh दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा v अपॉन r के बराबर रख लूँ मैं, तो mgh दैट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाँ आई आपके पास सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 2/3 और सर 1/2 mr स्क्वायर और ओमेगा v अपॉन r आता है तो v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। दिस इज mgh दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 m स्क्वायर। सो ये आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये 4 इज द एलसीएम, सो 2 + 1 3/4 mgh दैट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ mv स्क्वायर के बराबर आपके पास आ गया। ठीक है, 3/4 mv स्क्वायर के बराबर हमारे पास ये बच गया। सो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो गया, तो h हाइट अटेन्ड दैट इज इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर ओवर g के बराबर। सो दिस हाइट 3/4, v आपके पास कितना है 5 का स्क्वायर, और g हमारे पास कितना है दैट इज 9.8। सो दिस h दैट कम्स आउट टू बी 3 × 25 अपॉन दिस इज 39. So h that comes out to be 75 upon 39.2. So this h अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो ये हाइट आपके पास ऑलमोस्ट आपके पास आ रही है 1.9 मीटर। ये हाइट इसने अटेंड कर ली। अब डिस्टेंस निकालनी है तो हम लोग एंगल का फार्मूला लगा लेते हैं। मान लो s विद द डिस्टेंस, सो h अपॉन s दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, perpendicular upon hypotenuse that is sin of theta. So this s that is equal to h upon sin of theta. So s that is equal to height 1.9 sin of 30 degree. Sin of 30 degree that is 1/2. So s is equal to किसके बराबर आ गया, that is 1.9 divided by 1/2. So this s that comes out to be 3.8 मीटर। इतनी हाइट, इतनी डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ये आपके पास पार्ट आ गया ए। अब दूसरी बात हमारे पास क्या पूछी गई है दैट हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द बॉटम। जितना टाइम जाने को लगाएगा उतना ही आने को लगाएगा हमारे पास। तो मैं टाइम निकाल देता हूँ इस साइड को, इस साइड को आने का। मान लो ये कहाँ से, यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हुआ हमारे, ठीक है। सो टाइम हमारे पास क्या आता है दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। तो पहले तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं इसका, लीनियर एक्सेलरेशन v का।
एक्सेलरेशन हम लोगों ने फार्मूला निकाल रखा था, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, दैट इज इक्वल टू 2/3 g sin theta, 2/3 g sin of theta. So this acceleration, that is 2/3 into 9.8 into sin of 30, that is 1/2. तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a that is equal to 9.8/3, that is equal to 3 point, यहाँ से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और उसके बाद आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज 666 आ जाएगा आपके पास। तो ये एक्सेलरेशन मैंने मान दिया 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द टाइम टेकन, अगर हम लोग ये फार्मूला लगा चले, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक साइड का टाइम निकाल दिया हम लोगों ने, मान लो इसको t1 मान लिया हम लोगों ने, तो u ये कहां से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, सो u दैट इज इक्वल टू 0। सो s था हमारे पास कितना बेटा, ये निकाला 3.8 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इनटू 3.27 t1 का स्क्वायर। सो ये हम लोग यहां से देखें तो हमारे पास आ गया ये t1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 7.6 डिवाइडेड बाई 3.2, 7 लेना हो तो 7 ले लिया हम लोग ने, 27 ऑलमोस्ट हमारे पास, मैंने इसको लिख दिया t1 स्क्वायर दैट इज 7.6 अपॉन दिस इज 3.3 ऑलमोस्ट हमारे पास। सो दिस t1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो हमारे पास ये आ जाता है ऑलमोस्ट 2.3 के बराबर, 2.3। सो t1 दैट इज 2.36 के बराबर, दैट इज अंडर रूट, सॉरी 2.32 के बराबर, तो 2.3 ले दिया मैंने, 2.3। सो दिस टाइम दैट कम्स आउट टू 1.5 सेकंड के बराबर, एक साइड का टाइम, एक साइड को आने। सो टोटल टाइम देखो, जितना जाने को लगाया उतना आने को लगाया, सो टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू 2t1 के बराबर। सो दिस टाइम दैट इज 2 into 1.5 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 3 सेकंड के बराबर हमारे पास क्या करेगा, ये टाइम लगाएगा ऑलमोस्ट, कहां पर, जाने में और आने में, टू रिटर्न। तो ये हमारे पास थी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज विद दिस योर चैप्टर, दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, दैट इज ओवर। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन से स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।